Hello. Hello. Hi. Hi. Okay, then explain your project. Uh, actually, I will share to you, okay, my project. Okay. बरं ठीक आहे. मी एक प्रोजेक्ट बघते तो त्यांचा आहे मला. Okay, you saw my screen? Hello? एक second थांबा. Hello? Yes. Hello? Yes, okay. Okay, this is three projects I did it. Actually, this is the case studies. This is the website. First is the website design. Actually, I did them on Figma. So it is a fruits related to fruits and vegetables. Okay, and my actually the problem statement is and the whole project description I mentioned over here. And this is the organic project for the related to fruits and vegetables and dairy products, and also that is just 1 second. Yeah. Actually, this is related to organic. Okay. So, and I buy from the farmers also and distributors also. So this is the concepts behind it. So this is frequently asked these questions and typography prototype I actually mentioned over here. And this is the wireframing I did then. Frequently asked testimonials, bestsellers. So this is for the website I designing. So before that I designed the wireframing also for the websites. Okay. Okay. So after that, this is the main screens, the best sellers. This is the fresh vegetable dairy products, and this is fruits, vegetables, and dairy products. These three items I mentioned earlier. Okay. Okay. So this is the prices, and I mentioned over here. This is the card systems, and before that card, this is location over here, and after the users is in the sign in, and this is the home page, location, and which area which is this is the orders market. Okay, this is the farm fresh foods, and this is the name of which is given from the items from farmers and wholesalers. Okay. So Okay. this is the name for the my farmland and all the farmers vegetable shops. This is the name which is given over here, and the users buy from these sites. And this is the area which is delivered to the. This is it's in Pune actually. I actually mentioned the location only in Pune. Okay. So after that, I did that for the payment. Payment is it is in the users can sign in over there for the payment, delivery address, delivery time, and payment method. Also, I mentioned over here. So this is the mobile number. Okay, in that this is a user send the OTP on that mobile number, and after that the delivery address type and payment method also we mention here, and cart also it is three items over there. Okay, which is three items I select over here. So uh, the profile which is given to the users. Okay, so after that, this is the three types of the payment. Okay, UPI, credit and debit cards and wallets over here. Okay, so in whenever the three types of the available is wallet, users can be use the wallet also and credit and or debit also. Okay, debit card also, and the one other option is the UPI. And after that is the request.
last is the submit the name and email ID and your message. Okay. That's the screen last over here. So this is related to the fruits and vegetables. Okay. Okay, this is the farm. Okay. This is my first project, and the second project is the case studies is related to the clothes. Okay. Uh, this is the problem statement is the shop the name it is given to the Shopee. Okay, the Shopee app, actually this app is provided for the users can be buy from the whenever we go to the outside we buy the shopping from the uh, online offline. Okay, whenever but users can buy from the online shop also, because many people go outside and buy from the offline for the shop. So I given to the one side is the Shopee is covered for the women, men's and kids. Okay, the retail stores is there. Okay, so from retail stores we buy from the online. This is the actually we provide the benefits to the users. Okay, so this is my problem statement or project story I mentioned over here. So users can buy clothes from for women, men's and kids. So this is Hello. my design If you process. I have did that. problem with English, you can explain in Hindi. No, the problem statement. Yeah, okay. So problem statement is a cloth shopping is easy. Okay, clothes is buy from the online or offline. But I actually provide the only the online shopping is there. Okay, not offline, because many people want the offline also, but the users can only the benefit is users don't go to the buy from outside for the go to the shop. This is actually the benefit. This is the users research. Pain points I also mentioned over here. Users persona. This is a research over here. Okay, and empathy map is also there, and typography and color style is also I mentioned over here, and user journey map. So this is the UX research I did that. Okay, on this case study I actually mention over here the emotions. What is the emotions and pain points, touch points, and user action. So I mentioned over here. So this is the user journey map. Okay, because many did users have a problem of different problems. Okay, and different pain points also is there. So con- uh, you saw my screen, no? Yes. Properly. Okay. Okay. So many users they have a very price conscious also. So I mentioned over here. Okay. Next. Next is the experience map, and this is the experience map. You can explain in short, basically what is the project. And also this is the 4 users. Okay, the size and product, this is the experience map. Also which users want the selection about the sizes and products also they have a problem. So this is the experience map in this users I mentioned over the points. The main for example the users want to say that the time consuming when shop online. Okay, and users is very price conscious also. Skip that. Only explain me what is your project and what do you have the research. Does research. Actually, I researched the questionnaire. I did that for the research. Okay. This is the Google form. From the Google form, I did that the questionnaire. Okay, so that's type of I found it. I actually
telephonic interviews also did for the users. And second is I did the 10-11 questionnaire also there, and getting from the problems. And also so that's the I design it what is the problem and solutions. So that's the type of I mentioned over the points. Okay. Next. Next, the information architecture. This is the login page, home page, sign up, how Okay, to okay. users Next. use this app, and how to buy the online. So that's the category list of category. I did that product details I mentioned over there. Skip How to check. Skip. Next. Next is the wireframing. I also did. This is the sign in screen. Okay. How to add to band, and this is the search women, men, and kids. This is a search over there. Users can be search over here to okay. So this is the wireframing I did then. After that, review and rating also I mentioned over here, and checkout wish list and shopping bag also is I mentioned over here. And this is the prototype. Okay. This is the mobile screen. Okay. How to sign up and sign in screens. The users can search over here for buying the shopping and all the categories are also here and there, and the category details is also is mentioned over here in the screens. Homepage category details, product details I mentioned over the screens, and users can search and buy it from. This is the process, whole process is there, and after that the checkout is there and the wish list. Yeah, that's it. Hello. Next project. Okay, this is the second project, and the third project is the third project is related to the app. Short में बताओ. Only Apple. This actually this is the project overview. It is the users can buy the online shopping only for the fruits and which is only for the apple. Okay, and users can buy only from the hospitals. Okay, whenever the patient is admitted in the hospitals, so customer is there only for the patient is there. Okay, so this app is used for only for the patient who is admitted in the hospital. So this is a green apple, yellow apple, and red apple is mentioned over here. Okay, the three types of apple is there. So this is the categories, and also I mentioned that this is the types of apple I actually mentioned over here: the red, green, and yellow. This is the types of and design thinking I actually this type of define identity prototype and test I use it on this project. So I research over on their competitor analysis, and this is the competitor Nissan, Big Baskets, Amazon. Actually, users can buy JioMart, Amazon, Big Basket, and Nissan Connect also there. Okay, so this is the research method I surveyed it. Then this is the type of question, 11 questionnaire as actually mentioned over here. Okay. So this type of responses I actually collect from them, and actually user persona I did that. User persona is there, and after that the affinity mapping is there. The pain points, needs, and goals, and what is the ideas, and this is okay. Want to show me UI screens. Is sorry. Show me your UI screens. It's just a 1 minute. This is the user flow.
UI screen. This is the wireframing. This is no. Yeah, this is the UI screen. Hello, you saw now? Okay. Hello. Yes. Yeah. Yeah. This is the sign in screen, foods category screen, and this is the categories. The green apple, red apple, yellow apple, and the types of apple is the category I mentioned earlier. Okay. Thank you. This is that of the paper I mentioned. Yes, enough. Okay. Thank you. Sir, Okay. how sir? हेलो सयोनी, हेलो आपको आवाज़ आ रहा है? हेलो आपको आवाज़ आ रहा है? चेक करो आवाज़ आ रहा है कि पूछो। हेलो, सुनो, में आवाज आ रहा है? हेलो, हेलो, वो क्या आवाज़ आ रहा है? इसका तो कुछ नहीं है। आवाज़ आ रहा है आपको? मोबाइल से बात करो। हेलो। हाय, हेलो। हेलो, फ़ोन करो उनको वापस से। कौन है ये? आज ही ऊपर आई थी, उसको जल्दी क्लास स्टार्ट करना है, देखो अच्छा।
मंडे से वो बोला है उसको स्टार्ट होगा। मैडम आदि की नहीं करी कुछ तू ये पहले करके दे, इसके कारण ना तुम्हारा बहुत लफड़े हैं। ये आपको कनेक्ट कर दिया वो आपका ही करना है। तू ही कनेक्ट। हिमांशु, हिमांशु कोई दूसरा है? हाय हिमांशु, हाय हाय हिमांशु, हाय हाय। 1 minute, just in 1 minute. फिर से आप एक बार नहीं और एक आप भोपाल से हो ना? आई थिंक हमारी बात हुई थी। सर इंदौर से हूँ। इंदौर से, यस। ओके, कनेक्ट हो गया। यस, ये आपको आवाज आ रहा है? हाँ जी, यस। Saloni. Where from you, Saloni? I'm from Pune itself. So which area? Sahkar Nagar, Parvat. Nagar, fine. Okay. Himanshi from Indore and Pune from Sahkar Nagar. ठीक है, चलेगा। Right. हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले तो UI UX होता क्या है, पहले आपका क्वालिफिकेशन सिर्फ मैं पूछ लूँ। हिमांशी, आपका क्या क्वालिफिकेशन है? सर इंजीनियरिंग करी है। किसमें? CS। CS कंप्यूटर BE, ठीक है। आपने क्या किया है सलोनी? मैंने फैशन डिजाइनिंग किया है और मेरा खुद का लेबल है सिंस द लास्ट 10 इयर्स। फैशन डिजाइनिंग, ओके, नाइस। अभी आपका खुद का क्या बोले आपने? मेरा खुद का लेबल है। आई हैव अ ब्रांड आई हैव बीन ओह नाइस, रनिंग फ्रॉम द लास्ट 10 इयर्स। ओके ओके ओके, बहुत बढ़िया काम है। मैंने आप बिजनेसमैन हो। आप इसमें क्यों जाना चाहते हो UI UX में, और क्या आपको किसने बताया फर्स्ट टाइम? क्योंकि ये UI UX सभी को पता नहीं होता। मोस्ट ऑफ नहीं, दैट्स ट्रू एक्चुअली। मैं चेंज करना चाह रही थी फील्ड बिकॉज फैशन डिजाइनिंग अभी थोड़ा सा stagnant. I started feeling because for me I felt there is not much creativity left because clients that I have they know what they want and that is readily available in the market. Okay. And that's not something that I really want to do. I want to like keep in touch with creativity. I want to do my bit. So मैं सोच रही थी कि I wanted to change my field and I thought I should get into something which is technology based because now everything is going digital. So I thought it's better, to do something in that field. So I have a friend who not recently, 2 years back, she did UI UX. Okay. And from her, I got to know about the course, and I did my bit of research, and it sounded exciting to me, especially the UX part. Okay, nice. Yeah. So ठीक है, कर लो। I thought of सब कुछ समझ गया मैं। सबसे पहले तो UI UX बहुत कम लोगों को पता होता है। सबको लगता है कोडिंग होती है इसमें। हम क्वेश्चन आंसर पैटर्न से हम लोग बात करेंगे। UI UX होता क्या है, कैसे काम करता है, इसमें थोड़ा सा हम लोग पहले बात कर लेते ताकि हमें पता चले कि हम क्यों करने वाले हैं, आखिर इसका महत्व है, कुछ काम का है या नहीं है। आगे जाके भी फिर से वैसे ही फिर रिसेशन आ गया, ये हो गया, प्रॉब्लम हो गया, ऐसी बातें नहीं होना चाहिए। तो हम लोग पहले ही क्लियर कर लेते हैं कि UI UX में सही में दम है, आगे जाके कुछ काम का है, या नॉर्मल ऐसे ही जैसे बाकी के कोर्सेज चलते आते जाते इस टाइप से चलेगा। तो यहाँ पे UI UX के बारे में थोड़ा सा मैं एक्सप्लेनेशन देना चाहूँगा कि UI UX सही में बहुत अच्छी फील्ड है फ़िलहाल के लिए, क्योंकि ये नया है और 2016 से पिकअप पकड़ा है इंडिया में। और अभी अगर आप लिंक्डइन या XYZ के सर्वे देखोगे तो इट इज़ अ लेटेस्ट 3 नंबर पे आता है ये, ठीक है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में। उसका रीज़न भी है। रीज़न ये है कि ये बहुत बोल सकते हो ना, एक बहुत ही अलग चीज़ है, जैसे कि हम लोग सोच भी नहीं सकते। जैसे कि मेरा बिज़नेस है या आपका बिज़नेस है, तो ये बिज़नेस को ग्रोथ करने के लिए पूरे आइडियाज़ लगाना, फिर उसको ग्रोथ करवा के लेना, ये सब कुछ वो कराता है, लेता है। ये इसी का काम है। किसका? UI UX का। UI UX अगर नहीं है तो समझ लो कि बहुत सारे बिज़नेस विदाउट प्लानिंग फुल चलेंगे, ये तो पक्का है। अब मैं इसको एक इसमें लेता हूँ,
नॉर्मल वे में। ओके फर्स्ट क्वेश्चन आंसर पैटर्न में हम लोग बात करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन था मेरा कि UI UX में कोडिंग होता है क्या, इट्स एन कोडिंग और नॉट, आपके हिसाब से क्या है? पहला क्वेश्चन मुझे ये पूछा जाता है सारे स्टूडेंट का, नहीं UI UX में कोडिंग होता है या नहीं, आपके हिसाब से क्या है? यस हिमांशी और सलोनी, यस और नो? नो सर, कोडिंग नहीं होता। आपके हिसाब से नहीं होता, यस और नो? बट कोडिंग अगर कोडिंग होता नहीं है, देयर आर पीपल हु नो कोडिंग बट हु डोंट नो डिजाइनिंग, एंड देयर आर पीपल हु नो डिजाइनिंग बट दे डोंट नो कोडिंग। बट मैंने जितना पढ़ा है उतना ये है कि अगर कोडिंग आपको आता है इसमें प्लस पॉइंट है। यह यस प्लस पॉइंट है, बट कोडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, दिस इज कोडिंग लेस। ठीक है, पहला क्वेश्चन का आंसर खत्म हो गया। नंबर 2 में कोई क्वेश्चन किया जाता है, सभी के क्वेश्चन आंसर भी ले रहा हूँ ताकि आपको क्वेश्चन ज़्यादा ना पड़े। इसमें जॉब अपॉर्चुनिटी इतना क्यों है एज कम्पेयर टू द अदर फील्ड, और ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग और UI UX डिज़ाइनिंग आर सेम और नॉट? ये ग्राफिक डिजाइनिंग कम्स अंडर UI आई गेस, और UI आर सेम, सेम है क्या? ये इस क्वेश्चन है यस और नो, सेम और नॉट? टू एन एक्सटेंट आई थिंक सेम है। तो बेसिक ग्राफिक डिजाइनिंग है एंड UI UX इज एडवांस। नहीं, दोनों अलग हो गए क्वेश्चन के आंसर। देखो अभी था ये नो है इसका भी आंसर, बिकॉज एक ग्राफिक्स का अपना काम है लोगो बनाना, ठीक है, डिज़ाइंस करना, लोगो डिज़ाइन कर दिया काम ख़त्म, उसके बाद ये बैनर बनाना काम ख़त्म, लीफलेट बनाना काम ख़त्म। ये छोटे छोटे जो काम होते हैं या बड़े जो भी मैगजीन बनाना ये हो, मुझे पता नहीं, बहुत सारे काम करते हो, तो ये काम करेंगे वो लोग। तो प्रिंट मीडिया से ज़्यादा इनका डायरेक्ट कॉन्टेक्ट है, दिस इज प्रिंट मीडिया ओनली। पर UI UX का कोई प्रिंट मीडिया से लेन देन नहीं है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू देन वेब डेवलपमेंट एंड ऐप डेवलपमेंट। हम ऐप और वेब डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं, अभी तो वॉच के लिए भी करते हैं, वॉचेस बन रहे हैं उसके भी हम लोग डिज़ाइन बनाते हैं, बहुत सारी डिज़ाइन हम बनाते हैं, न जाने कितनी सारी डिज़ाइन हम लोग तैयार करते रहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन का आंसर हो गया नो। तो ग्राफिक डिज़ाइन एंड UI डिज़ाइन बोथ आर डिफरेंट, और बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है उतना। ठीक है, चौथा नंबर का क्वेश्चन फिर से लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन मुझे पूछा जाता है कि सर ये UI UX डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी यार, ये तो सब हमारे लोग डेवलपर लोग भी वो गेटिंग द फ्री थीम ऐसा लिख सकते कि HTML फ्री टेम्पलेट है ना, ऐसा लिखते हैं आ जाती है टेम्पलेट। क्या ज़रूरत है इन लोगों की, क्या ज़रूरत पड़ी इन लोगों की HTML, ये तो पूरी अच्छी अच्छी टेम्पलेट मिल जाती है, यहाँ से ले लो टेम्पलेट और एडिट कर दो अपना कंटेंट, राइट। ऐसे लोग बोलते हैं मुझे, अब मैं क्या बोलूँ? ठीक है, अब बताइए, आप ही बताइए कि क्या बोलूँ अब इसके ऊपर। हिमांशी, सलोनी, क्या आंसर है आपके पास? इन्होंने तो अपने को क्वेश्चन में डाल दिया यार, सब कुछ तो अवेलेबल है, आप क्यों आते हो बीच बीच में हमारे UI UX वाले? I think UX basically is they try to simplify the experience, the user experience. I don't know how to put this into words. क्वेश्चन बहुत अच्छा है। टेम्पलेट्स रेडी है, बट हर कंपनी का एक अलग यस यहाँ पे हम लोग गड़बड़ा जाते हैं, नीड्स होते हैं, राइट? यस बराबर बोले। लेकिन एक बता दो, ये 10,000 रुपये की या 5,000 की टेम्पलेट कौन लेता है जिसको रीच बड़ा नहीं करना है, जिसका क्लाइंट छोटा है, डॉक्टर है, उसको क्या करना है, उसको पता है उस एरिया के लोग आने वाले हैं उसके पास, ठीक है। अब कोई पूरे इंडिया के लोगों, इंडिया के पेशेंट को तो नहीं गिनने वाला है, क्योंकि उसके पास सुबह से लेकर शाम तक एक ही डॉक्टर काम करता है वहाँ पे, पता है। तो उस समय ये टेम्पलेट का काम यूज़ हो सकता है, छोटा मोटा इंस्टीट्यूट है वो यूज़ करेगा। लेकिन अब बोलोगे आप मेरे को साला पूरा का पूरा कंपनी बनानी है, ओला बना देना है, या फिर बास्केट बना देना है, या फिर मुझे कुछ तो भी ऐसा बड़ा काम करना है, मुझे फ्रूट्स ही बेचना है पूरे देश में, उस समय कस्टमाइज थीम लगेगी कि मुझे यही यहाँ पे चाहिए, ये यहाँ पे चाहिए, एक एक्चुअल थीम। मैं आपका डेमो जो है ज़्यादा से ज़्यादा और 10 मिनट लूँगा, 10 मिनट में मेरा डेमो ख़त्म हो जाएगा। मैं पुणे में शायद तक पहला इंसान होगा जो 15 से 10 मिनट के अंदर ही सारे डेमो ख़त्म कर दूँगा, और पूरा समझ में भी आ जाएगा, गारंटेड मेरी। ओके, पहला क्वेश्चन आंसर पैटर्न से लूँगा तो जल्दी समझ में आ जाता है आपको समझ में आ गया इतना कि यहाँ पे थीम कब लेना है, जब हमें कस्टमाइज़ ना हो, छोटा मोटा काम हो कर देते हैं तो थीम ले लेते हैं हम लोग, फिर वो UI उसकी ज़रूरत नहीं है। अभी उसका एग्जांपल मैं बहुत अच्छा देता हूँ। हिमांशी और सलोनी को घर बनाना है, हिमांशी को 2 करोड़ का बनाना है, और हिमांशी बोल रही है
कि सलोनी को भी घर बनाना है, मेरी फ्रेंड है, लेकिन वो अभी 2 करोड़ का नहीं, वो छोटा वाला छोटा सा घर बनाना चाहती है 10 लाख का। तो आर्किटेक्ट कौन बुलाएगा? पहले बिल्डर और आर्किटेक्ट, कौन बुलाया जाएगा, बिल्डर की आर्किटेक्ट? पहले बिल्डर बुलाओगे आप आर्किटेक्ट बुलाओगे? यस हिमांशी, तो 5 करोड़ रुपये खर्च कर रहे हो, 5 करोड़, 2 करोड़ में छोड़ दो। और बिल्डर आएगा आई थिंक। सलोनी खर्च नहीं कर रही है, सलोनी बोल रही है मेरे को छोटा सा घर बनाना है 15 लाख का या 10 लाख का। तो अभी आर्किटेक्ट किसको लगेगा पहले, हिमांशी या सलोनी को? मुझे लगेगा पक्का कि बिल्डर को बुला लो हाँ, डायरेक्ट? नहीं ना, श्योर ना? सलोनी हाँ। आपको क्या लगता है, आपको क्या करना चाहिए अभी इस केस में? इस केस में आई मीन घर छोटा है, 15 लाख का ही है, राइट, आर्किटेक्ट वुड बी अ नहीं बेटर। आप नहीं बुलाओगे 10 11 लाख या 15 लाख के लिए नहीं बुलाओगे, बिल्डर को बुलाओगे, डायरेक्ट बोलोगे ये इधर एक रूम निकाल दो, इधर रूम निकाल दो, काम खत्म कर दो, फिनिश। ठीक है, हिमांशी को लगेगा, हिमांशी रिस्क नहीं ले सकती, 5 CR 5 CR कम नहीं होते। अब वो गलत ड्राइंग बनाएंगी या गलत कुछ तो प्लान बनाने की, बिल्डर को बोलेगी ये कॉपी पेस्ट कर ले, वो अच्छा नहीं बनेगा। बी प्लानिंग के साथ एक अच्छा घर यानी अच्छा घर बनाया जाएगा। यहाँ पे भी ऐसे ही होता है, जब हम UIUX में बड़े साइट्स बनाते हैं या अच्छा कुछ बड़ा प्रोजेक्ट होता है या कुछ प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट होता है जिसमें क्लाइंट्स लाना हो, उस समय हमें इनकी ज़रूरत पड़ती है। किसकी? UIUX। विदाउट UIUX के हम काम नहीं कर सकते, अब नहीं कर सकते, इसके पहले कर सकते थे। ठीक है, तो ये आपको पहले पता होना चाहिए कि कहाँ पे कौन से लोग लगेंगे। अभी देखो फिर से एग्जांपल देता हूँ मैं, एक इतना बेहतरीन एग्जांपल कि आप 2 मिनट में समझ जाओगे। आपको फ्रूट्स बेचना है, किसको? हिमांशी को। तो हिमांशी फ्रूट्स वाला बन गई, ठीक है, उसका 10 लाख रुपए पर डे का ट्रांजेक्शन होता है, महीने का 3 करोड़ का ट्रांजेक्शन होता है। हिमांशी का बिजनेस अच्छा चल रहा है। एक दिन में आज मैंने बोला तो अगले दिन आ जाता है फ्रूट्स, कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छा काम चल रहा है। लेकिन फिर देखो मजा, देखो हिमांशी जो भी काम कर रही है उसमें कोई अपडेट नहीं की बेचारी ने, 2 साल हो गए, नया साल आ गया, तीसरा साल आ गया, वही चल रहा है बिजनेस। उसके पीछे पीछे सलोनी आ गई। सलोनी ने काफ़ी दिमाग लगाया कि यार फ्रूट्स इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी स्कोप है, तो हम भी एक अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। सलोनी ने बहुत अच्छी वेबसाइट बनाई, ऐप बनाया, वेबसाइट बनाया, जहाँ पे फ्रूट्स के बारे में इंफॉर्मेशन भी आ रही थी कि साइट्रिक एसिड है, विटामिन C है, मिनरल्स है, और जस्ट 2 या 3 घंटे के अंदर फ्रूट्स हमारे घर में आ रहा था। तो जो हिमांशी का टर्नओवर था 3 करोड़ रुपीस पर मंथ, सीधा 1 CR हो गया, और सलोनी का 2 CR हो गया पर मंथ। बिजनेस छीन लिया इनडायरेक्टली देखा जाए। सलोनी फ्रूट्स इज वेरी गुड नाउ एज कम्पेयर टू देन हिमांशी। अब देखो सलोनी, आपका कोई फ्रेंड का नाम बताओ। रोहित। चलो, अब इस रोहित को हम लोग, रोहित ने क्या किया, हिमांशी और सलोनी के पूरे प्रोजेक्ट को समझा। ओके, समझ के इसने इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना शुरू कर दिया, और ऐसा प्रोजेक्ट बनाया कि वो इन दोनों प्रोजेक्ट से भी अच्छा हो। बताता हूँ, उसने रिसर्च किया, 45 मिनट के अंदर डिलीवरी देता था, 45 मिनट के बाद में डिलीवरी हुई तो फिर 10% कम कर देता था फ्रूट्स में भी, और फ्रूट्स के बारे में इंफॉर्मेशन भी देता था, विटामिन है, मिनरल्स है, उसके बाद फाइबर कितना है, ग्लूकोज कितना है, शुगर कितना है, ये भी देता था। पब्लिक को ये बहुत पसंद आया, साथ में विटामिन मिनरल्स सब कुछ बता रहा है, साथ में 45 मिनट के अंदर डिलीवरी दे रहा है। पब्लिक खुश हो गई, और हिमांशी और सलोनी का मार्केट डाउन करवा दिया। 3 CR से डायरेक्टली गिर गए ये लोग 50-50 लाख पे। ठीक है, और सारा बिजनेस किसके पास गया? किसके? XYZ। हाँ, ये जो रोहित फ्रूट्स जो भी बोला था हमने, इसके पास चले गया। समझ गए अभी कैसे काम होता है? तो इसमें अब तुम बोलोगे सर UX क्या हुआ? ये जो रिसर्च पार्ट था जिसमें क्या करना है, इसमें क्या दिखाना है, नया क्या करना है, दिस इज कॉल्ड UX, नॉट UI। ये पूरा रिसर्च पार्ट था। UX हमको ऐसा करना है, इसमें ऐप में इतने चेंजेस करने हैं, और वो जो दिखाई दे रही है, जो पिक्चराइजेशन दिखाई दे रहा है, ये UI हो गया। सेम आर्किटेक्ट जैसा जो आपके साथ जो बैठ के बहुत सारी बातें की,
और रिसर्च किया कि कैसे घर बनेगा, वो हो गया घर बनेगा कैसे, वो हो गया उसका यूएक्स, पूरा रिसर्च किया उसने, और जो Right. बना के दिया पेपर पे यूआई हो गया। UI ठीक समझ है गए? बिल्कुल सिंपल वे में आपको समझा दिया कि यूआई यूएक्स कैसे काम करता है, Right. और आपका दोनों का मार्केट गिर चुका है, तीसरे ने ले लिया है और वो बहुत ज़्यादा अच्छा चलेगा। अब बताओ आपको अच्छा पहला लगा, दूसरा लगा कि तीसरा लगा? खुद ही बताओ, बोलो हिमांशी। तीसरा। हिमांशी आपको क्या लगा? लास्ट लास्ट वाला तीसरा 3। वाला आपका क्या तीसरा लगा? वाला। सलोनी आपको क्या Yeah. लगा? 3। Third, because it's right now at par with the market. यस, और फिर मैं भी दे दूँ तो 3। डिमांड है अभी मार्केट का। डिमांड में तो एज अभी पर डिमांड हो गया, तो आप हार चुके हो दोनों। मार्केट से आपको हम्म। गायब करने के लिए हमने कोई दुश्मनी नहीं की आपसे, ना आपकी दुकान में आग लगाई। ये इतना इजी गेम है कि हम लोग को मार्केट को किसको कैप्चर करना है, किसको नहीं करना है, डिपेंड अपॉन योर डिज़ाइंस, योर आइडियाज़, योर न्यू थिंग्स। Right. समझ गए जी? Yes. यस सर यूआई यूएक्स क्या होता है? इनडायरेक्टली डायरेक्टली मैंने सब कुछ बता दिया। अब यूआई यूएक्स अगर आप पूरे पुणे में ढूंढते हो, अगर गलती से भी, तो पूरे पुणे से हमारा रेटिंग नंबर 1 पे ही आएगा, आई थिंक, आई होप, क्योंकि उसका रीज़न है, कि हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट लाइव ज़्यादा कराते हैं हम लोग। तो यूआई यूएक्स ट्रेनिंग पुणे डालोगे तो ये आपको ऐसा आएगा, या ये सब एडवर्ड लगा के ऊपर आते हैं, ये नहीं, यहाँ पे देखो, ये फर्स्ट यूआई ट्रेनिंग पुणे करवे नगर 5.0, ये सब इधर सब नीचे है इसमें। समझ गए? Yes. और कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। अब मैंने आपके अपने तरफ से सब कुछ बता दिया है, 90% जो मुझे बताना था। दूसरा, आप वेबसाइट पे जा सकते हैं यूआई यूएक्स डिज़ाइन स्कूल की, इसी पे से यहाँ पे वेबसाइट पे जाइए, मिल जाएगा। ओके, और आपके कोई क्वेश्चन होंगे तो आप पूछिए। अब मुझे लगता है क्वेश्चन बहुत कम हो गए। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा 11 प्रोजेक्ट कराते हैं, जो पुणे में कोई नहीं कराता। लाइव प्रोजेक्ट ज़्यादा होते हैं हमारे, जो कोई नहीं कराता। और हमारा ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेशन, प्रोजेक्ट एक्सप्लेनेशन और प्रोजेक्ट ज़्यादा बनाने में होता है, और बेहतरीन तरीके से करते हैं ताकि लोगों को प्रॉब्लम ना आए, यानी जो भी हमारे साथ जुड़े वो ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सके। Right. ओके, क्योंकि लाइव प्रोजेक्ट आधे से ज़्यादा खेल लाइव प्रोजेक्ट का होता है, पहला चीज़ समझ लो। बहुत सारे लोगों को लगता है लाइव प्रोजेक्ट से क्या होगा, कि क्या नहीं होगा। मैं खुद बोलता हूँ कि अगर आपने प्रोजेक्ट बनाया ढंग से तो प्लेसमेंट 99% हो गया। अब प्रोजेक्ट नहीं बनाया, प्रोजेक्ट नहीं हुआ। ओके, तो प्रोजेक्ट के ऊपर सारा खेल होता है। हम लोग तो पूरा पढ़ा देते हैं, जो पढ़ाना है उसके ऊपर भी पढ़ा देते हैं। हम लोग HTML CSS भी लेते हैं ताकि बच्चों को प्रॉब्लम ना आए आगे जाके। अगर कोई कोडर बैठा है तो उसके सामने भी बात कर सके। तो हमारा सिलेबस में क्या क्या कवर करते हैं हम लोग, HTML CSS करवा देते हैं, जो कोडिंग का पार्ट काम का नहीं है वो भी। फिग्मा कराते हैं, एडोबी कराते हैं, दोनों सॉफ्टवेयर हो गए। उसके बाद फोटोशॉप इलस्ट्रेशन बेसिक करवा देते हैं, फिर कोडिंग करा देते हैं। उसके बाद 1 2 3 हो गए। उसके बाद हम लोग तीसरा काम, चौथा काम हमारा होता है प्रोजेक्ट्स कराना, और प्रोजेक्ट सबसे ज़्यादा होते हैं। 11 प्रोजेक्ट से भी ज़्यादा प्रोजेक्ट कराते हैं हम लोग, 11 से भी ज़्यादा। Okay. ठीक है, ओके, डन। Yeah. So I do have 2 questions really. ओके, आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हो। हाँ बोलिए। 1 सेकेंड अविनाश, 2 मिनट, एक तो मीटिंग ख़त्म कर रहा हूँ। हाँ मैं हूँ, वो भी 5 मिनट में या 10 मिनट में आने वाली है, पता नहीं आ गई क्या। मैं Can I ask? मीटिंग ले रहा हूँ, उसके बाद आ जा। हाँ, यस सलोनी। Okay. I wanted to know इसके लिए prior knowledge किसी का। हाँ, ये चीज़ क्वेश्चन का- छूट गया था, सॉरी, ये 7वें नंबर का क्वेश्चन था। मुझे क्वेश्चन किया जाता है कि इसके लिए कौन सी डिग्री अवेलेबल है, कौन सी डिग्री चाहिए। तो एनी डिग्री, एनी वन। इसमें कोई पुराना प्रायर आपका ग्राफिक डिज़ाइन और इसमें कोई होना चाहिए क्या नॉलेज, तो उसके लिए भी मैं बोलता हूँ बिल्कुल नहीं, ज़ीरो नॉलेज, डजंट रिक्वायर्ड नाउ। Okay. ज़ीरो। So we can pick it up without that. कोई भी कर सकता है। आपका कम्युनिकेशन अच्छा है, हिमांशी का अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आधा काम तो यूएक्स का कर ही लिया आपने। यूएक्स होता कुछ नहीं है, रिसर्च होता है। तो यूएक्स में तो आप परफेक्ट हो गया। अब रह गया यूआई, वो फिग्मा है, बहुत ईजी है, वो भी मैं करके दिखा सकता हूँ, लेकिन Oh yeah. वो टेक्निकल बंदा करके दिखाएगा तो अच्छा है, क्योंकि मैं यूएक्स में ही ज़्यादा ध्यान देता हूँ। यूआई बहुत ईजी होता है, बहुत ज़्यादा ईजी होता है। तो आप समझ सकते हो कि फोटोशॉप से भी ईजी हो।
Second लेकिन question I लेकिन इसमें एक Okay. ही चीज़ है, चालाकी। have. Right. इसमें चालाक अगर इंसान नहीं है, अगर उसको समझ में नहीं आ रहा है कि मार्केट कब गिर सकता है, कौनते बात से क्या हो सकता है, तो समझ लो उसका आगे वाला जो मालिक है वो भी गिरेगा तुम्हारे कारण। जैसे सलोनी और हिमांशी गिर चुके हैं डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ दिस थर्ड वन। ठीक है, देखते देखते तुम्हारे को बोलना पड़ा कि थर्ड वन इज बेटर फ्रॉम लास्ट टू। समझ गए Right. हिमांशी, सलोनी? बस अब क्वेश्चन करो। मेरा और एक था बिल्कुल, सवाल, बिल्कुल। probably personal. इसके लिए कुछ एज ग्रुप है, लाइक एज नहीं, लिमिट है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, एज का नहीं है यहाँ पे, फिनिशिंग का है और चालाकी का है। मैं बोल दूँ ना, बहुत No, अच्छा। this is from a job point of view I'm asking. यस, जॉब पॉइंट ऑफ व्यू। Because कितना I've एज है had- आपका? हाँ, see, I have had an experience in fashion designing for last 10 years. 10 years I have है, been उसका running businesses और मैंने काम में ब्रेक कभी नहीं समझ गया। लिया है, but now I'm changing my field. I'm 35. Okay. ओके, नो प्रॉब्लम। So जॉब के वक्त थोड़ा सा ये वियर्ड हो सकता है क्या? नहीं, मैं बताता हूँ, अभी एक 36 37 का एक लड़का लगा है जिसकी एज थी, Okay. लेकिन उसने काफ़ी काम किया है। उसने जो 6 महीने का ट्रेनिंग का टाइम दिया, उसने 7 महीने लगाया, लेकिन जब काम किया तो इतना मस्त किया कि लग रहा था यार ये बहुत ज़बरदस्त है। उसमें भी इंटर्नशिप लेटर लगाना पड़ता है हमें 6 महीने का, तो वो इंटर्नशिप में काउंट हो जाता है। फिर बोलते ठीक है, बस आपको बोलना पड़ेगा कि मैं इसी फील्ड से जुड़ी हुई थी लास्ट 10 ईयर से भी। मैं ऑल्सो फ्रॉम दिस ग्राफिक्स, नॉट ग्राफिक्स बट इन एन डिज़ाइन फील्ड ऑल्सो। डिजाइन, राइट। तो सेम फील्ड है, मुझे बस स्विच मारना था, मैं मार दी। हाँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम यही होगा कि आपको एक्सप्लेनेशन देना होगा हर जगह पे। हाँ, वो तो है। ठीक है, क्योंकि दुनिया तो पता है आपको, राइट। तो वो तो एक्सप्लेनेशन ही मांगने के लिए बैठी रहती है, काम तो होता नहीं किसी को। True. तो वो एक्सप्लेनेशन तो देना होगा, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक्सप्लेनेशन मैनिपुलेट करके अच्छे से दिया जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को, क्योंकि आगे वाला भी तो एचआर ही बैठा है, वो भी तो एक सैलरीड पर्सन है, नॉट एज ओनर। Exactly. ओनर कभी डायरेक्टली नहीं लेता इंटरव्यू मोस्ट बड़ी कंपनी का। ठीक है, Right. टाइम ही नहीं। इन्फोसिस का मालिक कौन है, सिर्फ इतना पता है, इन्फोसिस का मालिक को किसने देखा ये पता करो। ओके, नहीं देखता कोई, इतना टाइम नहीं उनके पास। आप क्वालिटी दो, वो आपको ज़रूर जॉब देते हैं, यानी उनके तरफ से जॉब मिलना ही है। True. हाँ, बस ये हो सकता है कि कंपनीज के क्राइटेरियाज में कुछ में नहीं बैठो आप, कुछ में बैठो, तो कुछ में अपने को पहले ही छोटी कंपनी देखनी है जिसमें 200-400 एम्प्लॉय होते हैं। हमें मल्टीनेशनल में जाना ही नहीं है पहले साल, क्योंकि और सीखने को मिलेगा। देखो, मैं एचआर भी हूँ, मैं यूआईयूएक्स में भी हूँ, तो मेरा बात करने का टेक्निक अलग है। आप किसी भी क्लास में आप फ़ोन कीजिए, वो अलग टाइप से बात करेगा आपसे, उसको उतनी नॉलेज नहीं होगी। वो सिर्फ एक बोलेगा कोर्स बेचने के लायक बात करेगा आपसे, कोर्स बेचेगा आपको। इस बात को समझ लो, कोर्स बेचने का काम करेगा वो। अगर सिर्फ कोर्स बेचोगे तो कुछ काम का नहीं है। आप उनको प्रॉपरली बताओ, जिससे भी बात कर रहे हो, क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, कितना पैकेज मिलेगा, इसका अपकमिंग कब से आया, 2016 से ही इंडिया में आया। अब मैं आपको बता दूं, मेरी बहन खुद गूगल के लिए काम करती है एज ए यूआईएस डिज़ाइनर। ठीक है, वो मेरे साथ काम कर रही थी एज ए मेंटर बहुत दिन तक, तो उसको बोलते नहीं आता था। मैंने बोला तू एक काम कर, मेंटरशिप कर, फ़ायदा होगा। फ़ायदा होता है, अगर आप मेंटरशिप करते हो, बात करते हो ढंग से, तो आपकी ज़बान खुलती है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन पावर आता है। ये चीज़ लोगों को लगता है मेंटर रहने क्या होता है, मेंटर बहुत बड़ी चीज़ होती है। 10 लोगों को संभाल लेने बहुत बड़ा काम हो गया उसका, और 10 से फिर 100, 100 से 2000, दिस इज़ कॉल्ड मेंटरशिप। तो धीरे धीरे आता है, ऐसे नहीं आता। उसको बोलते नहीं आता, गूगल में काम करती। ठीक है, अब वो मैं नाम नहीं लूँगा उस कंपनी को, वो जो फर्स्ट टाइम काम करने गई थी, मैंने बोला छोटी कंपनी में करना है तो छोटी कंपनी में उसको लगाया था यूआई चैनल। तो उसका जो बॉस था वो 2016 का पास आउट था, और उसके पास 100 कितने एम्प्लॉय थे, 1000 एम्प्लॉय थे। उस कंपनी का नाम नहीं लूँगा, ठीक है, 1000 एम्प्लॉय थे। सोचो, एंटरप्रेन्योर था वो। तो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि वो 2016 का लड़का कैसे बना सकता है कंपनी, हाउ इट्स पॉसिबल, ऐसा नहीं होता। एज ग्रुप इज डजेंट मैटर। आपका एज 35 से तो और अच्छा है कि आपके पास और नॉलेज है, आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे आइडियाज़ दे सकते हो दुनिया को, ये करो। राइट। पर आजकल दुनिया में भी उल्टा चल रहा है, सारी आइडिया वो 16 साल के बच्चे ही दे देते हैं। राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो उसको देखते हुए आपको बहुत आइडियाज़ और बहुत
दिमाग से खेलना पड़ेगा इस खेल में, ठीक है। True. तो कोई बड़ा काम नहीं है, मुझे नहीं लगता कि जॉब लगाना, मैंने तो 12-15 लाख के पैकेज दिया आपको, अभी एक ब्रोशर आएगा तो देख लेना। आपको कोई क्वेश्चन होंगे? मेरे ख्याल से मैंने सारे क्वेश्चन मेरे क्वेश्चन आंसर पैटर्न में कवर कर दिया, कुछ क्वेश्चन मैं भूल गया था जो मैंने और फिर से कवर कर दिया। ओके सलोनी। सर ये कोर्स का ड्यूरेशन क्या है, टाइप के? कोर्स का ड्यूरेशन क्या है, वो 3 महीने में ही ख़त्म होता है, लेकिन 3 महीने अपने को इंटर्नशिप देनी पड़ती है परफेक्शन लाने के लिए। ओके, परफेक्शन तो नहीं आता। टोटल इंटर्नशिप कहाँ पे होता है ये? इंटर्नशिप अपने ही होगी, लेकिन बाहर के प्रोजेक्ट रहेंगे। अच्छा, ओके, एंड दैट विल बी पेड? नहीं, वो प्रैक्टिस के लिए हो गए, पहले दिन ही पेड के लिए बोल दिया तो वो फिनिशिंग नहीं देंगे स्टाइपेंड तो भी नहीं होगा मतलब? अपने को फाइन लगा देगा वो, बोले टाइम पे करने किया नहीं आपने। So 3 months of the course and 3 कोर्स है, months उसके बाद of 3 महीने का जो इंटर्नशिप कर रहे हैं ना, वो अपने ही खुद के भी प्रोजेक्ट होंगे, बाहर के भी होंगे, उसको Benefit. फिनिशिंग के लिए। अब ओके 6 महीने के बाद जो प्रोजेक्ट लोगे वो पैसे लोगे आप, क्योंकि फिनिशिंग के लिए पहले दिन ऐसा नहीं होता ना कि आपको प्रोजेक्ट दे दे वो गड़बड़ कर दोगे आप। that's true, but इंटर्नशिप के लिए स्टाइपेंड भी तो होता है। ये इंटर्नशिप अपन बाहर नहीं दे रहे, अपने ही पहचान की कंपनियों से उस टाइप के प्रोजेक्ट बना के ले रहे हैं, ओके, समझे? फॉर प्रैक्टिस। डायरेक्टली अपन ने प्रोजेक्ट ले लिए और नहीं बना तो कौन जिम्मेदार होगा बताइए? ओके, नाम तो दोनों का Got it. खराब होगा, बोले सलोनी ने काम नहीं किया, वो मेरे को फ़ोन करेगी, अरे यार अथर्व कैसे एम्प्लॉय रखते तुम, समझ गए? गॉट इट, या तो पहली बार में नहीं हो सकता, आपने भी बिजनेस किया आपको पता है, पहली बार में आप कुछ नहीं कर सकते। राइट। ओके, तो आपका एक छोटा सा टेक्निकल डेमो ले लिया जाएगा राहुल के थ्रू, बस हो गया। उसके बाद बाकी के बाद आप श्वेता से बात कर लीजिए, मैंने बता दिया हम नंबर 1 पे है लास्ट 10 ईयर से पूरे पुणे ठीक में। है। और बाकी कहीं पे भी डेमो लीजिए, आपका 15-20 मिनट में कोई डेमो नहीं ले पाएगा इतनी स्पीड में, ठीक है? ओके, चलिए, और कुछ क्वेश्चन होंगे तो बताइए, नहीं तो मेरा पर्सनल नंबर है, अगर कुछ क्वेश्चन हो तो व्हाट्सअप कर दिए, ओके ऑलराइट, ठीक है? चलो बाय बाय, थैंक यू। माय नेम इज़ अथर्व, थैंक यू, थैंक यू सलोनी, मानसी, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। देखो मैडम, अपना डेमो ना सुपर डुपर हिट होता है।